And your voice is not coming. Sorry, now it is coming. Yes, ma'am. Yeah. Okay, 1 minute, beta. Make a heading of the electrophilic substitution reaction. Now, the last chemical property in the case of the carbonyl group is the electrophilic substitution reactions. ओके, अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या हो गया यहाँ पे? तो देखिए, योर एल्डिहाइड ग्रुप इज दिस, और इफ वी टॉक अबाउट द कीटोन्स, तो कीटोन्स क्या हो गए? कीटोन्स आर गोइंग टू बी द this group. Now in both the cases they are what? They are the, over here we are having the electron withdrawing groups, therefore they are going to deactivate and meta directing groups they are going to be. For example, if we are going to do the nitration, तो ये क्या हो गया? बेंजल्डिहाइड हो गया. बेंजल्डिहाइड plus HNO3 in the concentrated state in the presence of the concentrated H2SO4. So it is going to give the substitution at the meta position. Plus water molecule is going to liberate. Say suppose we are having the ketones. So in the case of the ketones, agar nitration hota hai, so again what is going to happen? You are going to have the nitro group at the meta position. So this is all about the electrophilic substitution reaction. Okay. Now coming to the uses में if I talk about the aldehydes, so aldehyde solution जो है, या आप ये कह सकते हैं कि 40% aqueous solution of formaldehyde, जिसको आप क्या बोलते हैं, formalin, वो यूज करते हैं to preserve the biological specimens, या फिर backlight prepare करने के लिए. backlight जो है it is a your polymer. देन acetaldehyde जो है वो स्टार्टिंग मटेरियल होता है फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेनी केमिकल्स लाइक द एसिटिक एसिड, इथाइल एसिटेट, विनाइल एसिटेट, पॉलीमर्स, ड्रग्स. बेंजल्डिहाइड को आप परफ्यूम्स और डाई इंडस्ट्री में यूज करते हैं. एसीटोन एंड इथाइल मिथाइल कीटोन को आप कॉमन इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट्स की तरह यूज करते हैं. Okay, so with this we finish completely the aldehydes and ketones. Now let's move to the next topic. Put the heading of the carboxylic acids. Now, when we are talking about the carboxylic acids again they are the what? They are the group which is having the carbonyl group and represented like this. Then it is as having the acidic character. Because of the presence of the acidic character, or you can say that it exhibits the acidic character, it is called as a carboxylic acid. अब अगर आप देखें तो इसके पास ग्रुप्स कौन कौन से हो गए? एक तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो गया, और एक ये वाला जो है कार्बोनिल ग्रुप जो है वो प्रेजेंट हो गया इसके पास. ठीक है. नाउ डिपेंडिंग के कार्बोक्सी जो आपका ये कार्बोनिल ग्रुप और हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, अब इसके बाद क्या हो गया कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो डिवाइड हो जाएगा टू पार्ट्स में. मींस इट कैन बी द एलिफेटिक और इट कैन बी द एरोमेटिक. एलिफेटिक कब होगा? व्हेन एलिफेटिक चेन इज गोइंग टू बिकम एरोमेटिक, इज गोइंग टू बी कि आपके पास रिंग स्ट्रक्चर जो है उसके साथ एसिड इज अटैच्ड, देन इट इज गोइंग टू कॉल्ड एज अ एलिफेटिक और एरोमेटिक. देन एलिफेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स जो हैं उनको आप फैटी एसिड्स भी बोलते हो. एंड जो हायर मेंबर्स हो गए, हायर मेंबर्स का मतलब C12 से C18 तक, फॉर एग्जांपल योर स्टेरिक एसिड, पाल्मेटिक एसिड, ये सब जो हैं ये एज अ नेचुरल फैट एग्जिस्ट करते हैं.
नेक्स्ट कम्स योर स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बोक्सिल ग्रुप. अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो स्ट्रक्चर एक सिंपल स्ट्रक्चर आपको पता है दैट इट लुक्स लाइक दिस. नाउ ऑक्सीजन एटम इज हैविंग द lone pair, isn't it? Now what is going to happen second, कि double bond है मतलब कि pi bond है, its shifting is going to take place. Now when the shifting is going to take place तो क्या हो गया कि आपका ये तो as it is रहा, यहाँ पे single bond हो गया and it is going to have the negative charge. इसके lone pair as it is रहे, बॉन्ड जब शिफ्ट हुआ तो कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज आ गया. सो फ्रॉम हियर लोन पेयर इज गोइंग टू अटैक ऑन दिस कार्बन एटम. This particular structure then we can write down as the oxygen, over here negative charge, ऑक्सीजन के पास प्लस चार्ज आ गया and lone pair and hydrogen. This is going to be its structure. Possible you can say the resonance structure. अब कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर जो बॉन्ड्स होते हैं कार्बोक्सिल एंड द कार्बन वो एक ही प्लेन में होते हैं एंड दे आर सेपरेटेड बाय द एंगल ऑफ द 120 डिग्री. कार्बोक्सिलिक कार्बन जो हो गया, कार्बोक्सिलिक कार्बन का मतलब ये वाला कार्बन जो है हर एक केस में इट इज लेस इलेक्ट्रोफिलिक कंपेयर टू द कार्बोनिल कार्बन. कार्बोनिल कार्बन का मतलब क्या हो गया कि आपका जब सी के पास डबल बॉन्ड है बिकॉज ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. अगर आपसे कोई पूछता है कि ये लेस इलेक्ट्रोफिलिक क्यों है तो रीजन है बिकॉज ऑफ द योर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. नेक्स्ट कम्स योर IUPAC nomenclature. Now, in the case of the IUPAC nomenclature, we are having the suffix as the oic acid. ठीक है. अब से suppose if we are having the CH3, CH, CH2, COOH and over here also one COOH. तो हमेशा याद रखना because it is a terminal group, so it means you are supposed to count the carbon atom of the carboxyl group. अब यहाँ पे आपके पास दो कार्बोक्सिल ग्रुप है और दोनों ही आपके चेन में आना चाहिए. So therefore you are supposed to start from here. So 1, 2, 3, 4. अगर आप ऐसे करते तो ये चेन में नहीं आता तो नेमिंग जो है वो गलत हो जाती. सो व्हाट इज गोइंग टू बी इट्स नेम. सेकंड पोजीशन पे नाउ यू आर हैविंग द मिथाइल ग्रुप एंड टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 4 है. सो इट इज गोइंग टू बी द ब्यूटेन. देन आपका फर्स्ट एंड फोर्थ यहाँ दोनों पोजीशन पे ओइक एसिड है. सो इट इज गोइंग टू बी दो बारी है तो डाई ओइक एसिड. ओके. देन यहाँ पे भी सेम रूल जो है वो अप्लाई होगा कि अगर आपके पास से सपोज 3 कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाते हैं यहाँ पे तो आप उसी को चेन में सेलेक्ट मींस या तो तीनों के तीनों आए या फिर आप एक को भी नहीं लेंगे. अगर मान लीजिए कि आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ कीटोन ग्रुप होता है प्रेजेंट देन ऑलवेज रिमेंबर द प्रायोरिटी इज गोइंग टू कम टू द कार्बोक्सिलिक एसिड नॉट द कीटोन. कीटोन को आप एज अ सेकेंडरी सब्स्टिट्यूएंट लेंगे. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल एक एक एग्जाम्पल कर लेते हैं. say suppose we are having the CH3 C double bond O CH2 COOH. Now what is going to happen? The numbering is going to start from here 1 2 3 4. So it is going to be 3 oxo butanoic acid. Okay. So this is all about the introduction of the carboxylic acid. Everyone has noted down this? Now, the next come the preparation method. Preparation of carboxylic acid. Now, preparation of carboxylic acid में first preparation method is by oxidation of primary alcohols and aldehydes. Okay.
नाउ लेट्स से सपोज कि हम लोगों ने क्या लिया, प्राइमरी अल्कोहल लिया। प्राइमरी अल्कोहल का मतलब क्या हो गया, फर्स्ट डिग्री अल्कोहल। ऑक्सीडेशन का मतलब दैट यू आर गोइंग टू टेक एनी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो से सपोज हमने लिया KMnO4 एंड सेकेंड स्टेप क्या हो जाता है, सेकेंड स्टेप इज गोइंग टू बी अ हाइड्रोलिसिस। सो प्राइमरी अल्कोहल आप लोगों को दे देगा कॉरेस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है। नाउ से सपोज आपने एल्डिहाइड लिया, दैट इज RCHO। नाउ इन दिस पर्टिकुलर केस अगेन आप कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लें। फॉर एग्जाम्पल हमने ये ले लिया, so it is going to give you directly the carboxylic acid, means इस केस में आपको हाइड्रोलिसिस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। what is Jones reagent? what is Jones reagent? क्या होता है Jones reagent? प्रीवियसली व्हेन वी वाज डूइंग द ऑक्सीडेशन रिएक्शंस मैंने आपको कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिखाए थे, वापस रिपीट कर रही हूँ बिकॉज ये एग्जाम में पूछ लेते हैं। CrO3 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 इट इज कॉल्ड एज अ जोन्स रिएजेंट। ओके। नाउ the B part, it comes another preparation method from the alkyl cyanides and amides. अब let's talk about the alkyl cyanides. हमने यहाँ पे cyanide group लिया, alkyl cyanide is going to be RC triple bond N। आप चाहे H प्लस का मतलब एसिडिक मीडियम, OH माइनस का मतलब अल्कलाइन मीडियम, कोई सा भी मीडियम ले, इन द प्रेजेंस ऑफ द वाटर इट इज गोइंग टू गिव यू अ RCONH2। तो ये क्या हो गया, ये तो आपका अमाइड ग्रुप हो गया, तो यू आर गोइंग टू कॉल दिस एसिटामाइड। नाउ व्हेन you are going to heat in any of these two medium, then you are going to have the carboxylic acid, आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। ठीक है, नोटेड इट। Yes, ma'am. नेक्स्ट, द थर्ड प्रिपरेशन मेथड इज फ्रॉम Grignard reagent, so it is RMgX plus, आपने ये ले लिया। ठीक है। नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन, इट इज गोइंग टू बी इन द प्रेजेंस ऑफ द ड्राई ईथर। आपको पता है कि बिकॉज यू आर टेकिंग अ अल्कलाइन मेटल ओवर हियर। अब एल्काइल ग्रुप के पास तो नेगेटिव चार्ज है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, सो दिस इज गोइंग टू अटैक ऑन दिस कार्बोनिल ग्रुप, सो यू आर गोइंग टू गेट द C double bond O X। ठीक है। अब यहाँ पे OMgX नेगेटिव है और हेलाइट जो है वो पॉजिटिव है, आप इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, सो यू आर गोइंग टू गेट द corresponding carboxylic acid. Fourth method of preparation is the hydrolysis of acyl halite and acid anhydrides. Now, acyl halite का मतलब क्या हो गया कि आप यहाँ पे Cl की जगह कोई भी हेलाइड ले सकते हैं। सो आई हैव टेकन द Cl, तो ये क्या हो जाएगा, एसाइल क्लोराइड। नाउ जब आपने एसाइल क्लोराइड लिया, सो द वन थिंग यू आर सिंपली डूइंग द हाइड्रोलिसिस, आपको क्या मिल गया, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड Cl जो है वो लिबरेट हो गया। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि पहले आप अल्कलाइन मीडियम के अंदर उसको रिएक्ट कराइए, फिर H2O की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस कराइए। तो आप इस केस में पहले तो आपको एसीटेटाइन मिलेगा, फिर जब आपने उसकी हाइड्रोलिसिस करी फिर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो मिलेगा। ठीक है। से सपोज आपने एनहाइड्राइड लिया, एनहाइड्राइड मान लीजिए मैंने लिया CH3
C6H5, C double bond O, C double bond O, this. This is your benzoic. Benzoic क्यों? यहाँ पे C6H5 है तो benzoic, फिर यहाँ पे CH3 है और ये C है तो इथेनॉइक एनहाइड्राइड. सो इसका जब आप हाइड्रोलिसिस कराएंगे, सो यू आर गोइंग टू गेट द C6H5COOH प्लस CH3COOH. बेसिकली जो आपके पास एनहाइड्राइड में स्टार्टिंग के अंदर जो भी ग्रुप्स थे, दैट पर्टिकुलर ग्रुप यू आर गोइंग टू गेट ओवर हियर. ओके, सो wait a minute. Moving ahead. So moving ahead over here. एक minute. So all of you have noted down this? Yes, ma'am. Okay. So next, the next method of preparation is the by hydrolysis of esters. Now, by the hydrolysis of esters, esters क्या हो गए? Esters CO. So टू COO CH2 CH3. अब देखिए इसका नेमिंग कैसे करेंगे आप. यहाँ पे आपके पास दो कार्बन एटम है, सो इट इज गोइंग टू treat as your ethyl group, and over here you are having the 4 कार्बन एटम्स. तो जो बड़ा वाला ग्रुप है उसके साथ आप एस्टर का लगाएंगे सफिक्स, सो इट इज गोइंग टू बी ब्यूटाइरेट. ओके, इसको आप इन द प्रेजेंस ऑफ एनी अल्कली ट्रीट करेंगे. जब आप प्रेजेंस ऑफ अल्कली में ट्रीट करेंगे, इट इज गोइंग टू हैव द CH3 CH2 CH2 COONA. तो बड़ा वाला ग्रुप के साथ क्या हुआ? सोडियम आयन आ गया, बिकॉज यू नो इट इज द प्लस चार्ज, इट इज द माइनस चार्ज. जब यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा तो COO मतलब इसके पास नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा. एंड जो छोटा ग्रुप था, इट इज गोइंग टू हैव द योर OH ग्रुप. मतलब कि आपको क्या मिल गया कि यहाँ पे तो सोडियम आयन अटैच हो गया एंड यू हैव गॉट द अल्कोहल. नाउ फर्दर जब आप इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं, देन यू आर गोइंग टू गेट द कॉरेस्पॉन्डिंग एसिड. ठीक है, तो these all were the method of preparation for the aliphatic carboxylic acid. Let's do the preparation of the benzoic acid. Benzoic acid means that it is a aromatic carboxylic acid. So the preparation of benzoic acid. So it is going to be the toluene you have taken in the presence of a oxidizing agent, and medium you have to keep a alkaline. Simply heat it. So what is going to come over here? COO minus and K plus. Because of this KOH, K is going to come. And you are on hydrolysis, it is going to give you a benzoic acid. ठीक है, दूसरी कंडीशन आपकी ये भी हो सकती है कि से सपोज आप यहाँ पे कोई भी ग्रुप ले लेते, CH3 की जगह कितनी चेन होती, अल्टीमेटली आपका यही बनता, एंड देन यू विल बी गेटिंग द बेंजोइक एसिड. Preparation over here can be from the nitriles and amides. अब नाइट्राइल्स और अमाइड्स अगर आप ले रहे हैं, सो अगेन फॉर एग्जाम्पल ये क्या हो गया? फिनाइल साइनाइड हो गया. नाउ in the presence of the H2O and your acidic medium, जब आप इसको हीट करते हैं, then you are going to get the
benzamide, and then in the presence of a water and the acidic medium, again you are going to heat it, मतलब आप इसको और heat करेंगे तो you are going to get the benzoic acid. Third preparation method is your hydrolysis of ester. Hydrolysis of ester के अंदर what you are going to do, you are going to take any ester, heat it, or you can say hydrolyze it. You are going to get the benzoic acid and the corresponding alcohol. And last method for the preparation of benzoic acid is going to be a Grignard reagent. Now, when you are going to take the Grignard reagent, what is going to happen in the presence of the C6H5Mg Br, you are going to have the C6H5 C double bond O, सिंगल बॉन्ड ही आएगा यहाँ पे. Make it a single only. O MgBr. ठीक है. Now over here, because of O is electronegative, तो यहाँ पे negative sign रहेगा, and over here we are going to have the positive sign. Now simply you are going to make it the hydrolysis. So it is going to give you a C6H5COOH. With this we finish our preparation of the carboxylic acid. All of you note down up to here, and you can take a 5-minute breaks. After 5 minutes break, I will continue the physical properties. So pani pina hai or you want to have something, you can just have it. And no one is going to leave the class.